Hello everyone, welcome to this session of legal reasoning. In today's lecture, we'll be discussing absolute liabilities concept. We'll be also dealing with strict liability ka concept. What entails in this video is there would be a passage followed by 5 questions. So these 5 questions will be based on case laws. You are expected to read the passage, chalk out whatever is the important principle in this passage, and you have to apply this in the factual matrix that is given in these questions. You'll be also asked to eliminate certain option choices. There will be 4 option choices. You'll have to eliminate and just choose what is the most appropriate option choice available out of these 4 options. All right. So the PDF of this question will be uploaded in the Telegram channel after a couple of days. You're requested to join the Telegram channel, keep yourself updated with the material stuff. You're requested to also practice these questions and apply your own logic, aptitude, and reasoning behind why this option is correct. Try to attempt this question at first, and thereafter you can look at the right explanation. With that, we'll be starting with the passage. You're requested to first read the passage. I'll be displaying the passage for a while. You can pause the video, read the passage, and then you can solve the questions along with me with this in this video itself. Yeah, this is paragraph one. Second paragraph. Third paragraph. All right. I expected कि आप लोगों ने pause कर लिया होगा. Let us start reading the passage. Absolute liability is a legal doctrine that holds individuals or entities fully responsible for damages caused by hazardous activities without exceptions or defenses. What a beautiful line. Now, this line has told us what is absolute liability. Are there any defenses available to absolute liability or not? Okay, and certain essentials to it as well. Okay. Now, there are certain case laws you can see, and it's a long passage, right? It's a really long passage. पर हमारा जो प्रिंसिपल होता है ना जनरली दैट इज जनरली ऑफ ओनली 1 or 2 लाइन्स. तो इतने बड़े पैसेज से 1 or 2 लाइन्स का प्रिंसिपल कैसे खोजते हैं, आई शो यू. विल जस्ट रीड द पैसेज एंड टेल यू व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन दिस पैसेज एंड हाउ वुड यू फिगर आउट आगे ऐसे लंबे पैसेजेस में कैसे आप एक लाइन का प्रिंसिपल निकाल सकते हैं. ठीक है. Absolute liability is a legal doctrine which is fully responsible for damages caused by hazardous activities without any exceptions or defenses. Yeah, this principle is particularly significant in India, where it involved in the landmark case of MC Mehta versus Union of India, also known as the Oleum gas leak case. Now, MC Mehta versus Union of India एक ये सीरीज ऑफ केसेस हैं. ये 1986 का केस है. ठीक है. ओलियम गैस लीक ये केस हुआ था, दिल्ली बेस्ड केस है. इट जस्ट फॉलोड आफ्टर द भोपाल गैस ट्रेजेडी विच इज यूनियन कार्बाइड केस. व्हाट हैपेंड इन दिस केस, ये एक फैक्ट्री थी, उससे रातों रात गैस निकल गई थी एंड ये पंजाब हरियाणा में डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स के अराउंड ये फैक्ट्री हुआ करती थी और इसके कारण काफी हार्म हुआ था लोगों को. ठीक है. तो ये एब्सोल्यूट लायबिलिटी का प्रिंसिपल इस पर्टिकुलर केस लॉ में कोर्ट्स ने एक्सटेंड किया गया था. ठीक है. अनलाइक स्ट्रिक्ट लायबिलिटी which permits certain defenses, absolute liability ensures that industries engaging in dangerous activities are fully accountable for any harm caused. ओके. अब तक वो सिर्फ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी की बात कर रहा था, बट अभी उसने स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस किया है. पर उसने दोनों में अंतर बताया कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में डिफेंसेस हैं, सर्टेन डिफेंसेस. अब वो डिफेंसेस कौन से होते हैं, जो आपका टॉर्ट्स के डिफेंसेस है ना, वही. तो टॉर्ट्स में हमारे कौन से डिफेंसेस हैं. एक डिफेंस है हमारा एक्ट ऑफ गॉड, राइट. एक डिफेंस है हमारा when the plaintiff is at fault. एक डिफेंस है हमारा इनएविटेबल एक्सीडेंट. एक डिफेंस है हमारा let's say VNFI, volatile fit non fit injury, मतलब when you have consented, you have the knowledge of the harm that is happening and आपको पता था ये harm होगा, उसके बाद भी आपने you underwent that. तो इस केस में आपको कोई भी आपको नहीं मिलेगा, आप compensation नहीं ले सकते.
टॉर्ट्स में बेसिकली कंपनसेशन के लिए ही वो कंपनसेटिंग द पर्सन जिसके हार्म हुआ है, आपको हार्म डिमॉन्स्ट्रेट करना पड़ता है एंड आपको उसके बेसिस पे कंपनसेशन मिलता है कि ठीक है दिस पर्सन हैड सफर्ड, उसका एक लीगल इंजरी हुई है। लीगल इंजरी का मतलब आपका कोई लीगल लीगल राइट था वो वायलेट हुआ है एंड उसके कारण ही आपको हार्म हुआ है। अब जरूरी नहीं है जो हार्म है ये एग्जिस्ट करे ना करे। जैसे आपने वो दो केस लॉ सुनोगे ना, डायनम साइन, दो मैगजीन सुनोगे, डायनम साइन इंजूरिया, इंजूरिया साइन डायनम, राइट, डायनम, या सो इन दिस केस लॉ, मतलब इसमें केस लॉ से ये मैगजीम्स अप्लाई हुए हैं। डैमेज विदाउट इंजूरी, डायनम साइन इंजूरिया, और एक है इंजूरिया साइन डायनम, यानी कि इंजरी विदाउट डैमेज। इंजरी विदाउट डैमेज में हमें केस लॉ पढ़ते हैं पे वर्सेस वाइट। उस एशबे वर्सेस वाइट केस में क्या हुआ था, उस पर्सन को डिटेन कर दिया गया था, वोट देने नहीं जाने दिया गया था। अब क्या हुआ, उसकी जो जिस पर्सन को वोट देना चाहता था वो जीत गया, पर इवन दो वो जीत गया, फिर भी जिस पर्सन का लीगल राइट था टू गिव हिज वोट, वो अपना वोट तो नहीं दे पाया। उसके वोट की वैल्यू एक वन होती, सबके वोट की वैल्यू वन होती, वो तो वोट नहीं दे पाया, उसका तो लीगल राइट था वो। तो इवन तो उसको कोई हार्म नहीं हुआ, वो जिसको चाहता था जीते, तो रिगार्डलेस वो पर्सन जीत गया, बट येट उसका लीगल राइट वायलेट हुआ। इस केस में उसको कॉम्पनसेशन दिया जाएगा, ठीक है। तो यही केस है कि अगर आपका कोई लीगल राइट वायलेट हुआ है आप उसके लिए कॉम्पनसेशन मांग सकते हैं, ठीक है। बट या अगर आपको जनरली हार्म डिमॉन्स्ट्रेट करना इज एसेंशियल, उस वो पर वो हार्म अपनी लीगल इंजुरी से कहीं ना कहीं निकलना चाहिए, ठीक है। इन केस ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, ये सब जो आते हैं ना, ये एक ब्रॉड वो है टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज। उसमें दो टाइप की, ये स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, एंड अनदर फॉर्म ऑफ इट्स कॉल्ड नो फॉल्ट लाइबिलिटी, जिसको वाइकेरियस लाइबिलिटी भी कहा जाता है, यानी कि उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी बट फिर भी आपको लाइबल ठहराते हैं। उसका कोई पैसेज हम आगे प्रैक्टिस करेंगे, तो आई विल एक्सप्लेन दैट इन डिटेल, आई गिव यू द ब्रीफ। Okay. Now, the doctrine emerged in response to industrial disaster, notably the Bhopal gas tragedy of 1984, which heightened the inadequacy of strict liability in addressing the large-scale environmental and human harm. Recognizing this gap, the Supreme Court of India ruled in MC Mehta case that enterprises handling hazardous substances must compensate the victims unconditionally, strengthening the country's industrial safety framework. For absolute liability to apply, certain conditions must be met. Now, look, up till now, this passage has been telling you stories, right? Ki which case law, what happened, this happened, that happened, and this gave this results, right? The only important line so far was without exceptions वाली line, and in strict liability जहां उसने बात की थी, जहां उसने बोला था there are certain defenses available, right? Defenses या exceptions जिसे कहते हैं। तो अब तक ये लाइन इंपॉर्टेंट थी, ठीक है, बट यहां आप देखोगे ना, इट इज टेलिंग यू क्या एसेंशियल्स होंगे एब्सोल्यूट लाइबिलिटी कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए, ठीक है। क्या सारे एसेंशियल्स मीट होना जरूरी है? दो एसेंशियल्स मीट हो रहे हैं, एक नहीं हो रहा, चल जाएगा? हाँ, नहीं, ऐसा नहीं होता। सारे के सारे एसेंशियल्स मीट होना मैंडेटरी होता है, तभी उन्हें एसेंशियल्स कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट essential entity must be engaged in inherently dangerous activity such as chemical manufacturing or gas productions। अब inherently dangerous activity क्या मतलब है? An activity और कैसे कोई ऐसा act which is likely to cause harm, ठीक है, such as chemical या फिर gas production। यार अब मुझे बात बताओ, अगर आप डेंजरस एक्टिविटी बोलोगे, घर में गैस सिलेंडर रखना डेंजरस एक्टिविटी है, आग तो पकड़ सकती है, बट वो नेचुरल नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड में नहीं आता है। तो आपने ये तीन इंपॉर्टेंट एसेंशियल्स आई गेस पढ़े होंगे, या नहीं पढ़े हो तो आई एम गोइंग टू टेल यू दैट। पहला होता है ये आपके एसेंशियल्स हैं इन स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, बट ये दे अप्लाई, उनके कुछ एसेंशियल्स आप एब्सोल्यूट लाइबिलिटी से समझ सकते हो विदाउट एक्सेप्शंस। व्हाट इज एब्सोल्यूट लाइबिलिटी? एब्सोल्यूट लाइबिलिटी इज लाइक स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी विदाउट एनी एक्सेप्शंस, ठीक है, इजी लैंग्वेज में समझना हो तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के ये एसेंशियल्स है: नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड, ठीक है, एंड देयर हैज टू बी अ डेंजरस सब्सटेंस, ठीक है, डेंजरस सब्सटेंस। अब ये जो डेंजरस सब्सटेंस है ये ऑब्वियसली नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड कॉन्स्टिट्यूट कर रहा होगा। इसका एस्केप होना बहुत जरूरी है। एस्केप मतलब बाहर निकलना, हमारे लैंड पे रहना जरूरी नहीं है। अब एस्केप होगा तो उससे हार्म होना बहुत जरूरी है, ठीक है। हार्म किसको? हार्म किसी पर्सन को हो सकता है, किसी की प्रॉपर्टी को भी हो सकता है, बट जनरली ये प्रिंसिपल नेबरहुड में अप्लाई होता है, ठीक है, नेबरहुड में अप्लाई होता है प्रिंसिपल जनरली। तो ये इस प्रिंसिपल को ही एक्सपैंड करने के लिए उन्होंने एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट निकाला था, क्योंकि एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में ना एक
ये स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में एक शॉर्ट एक लिमिटेशन थी कि सिर्फ नेबरहुड को अप्लाई होता था, क्योंकि एस्केप होना बहुत जरूरी था। अब एस्केप नहीं भी हुआ तो भी अब एक एक केस लॉ आएगा आगे, ठीक है। कहीं एस्केप नहीं भी हुआ बट हार्म तो हुआ है, ठीक है। क्योंकि बड़ी फैक्ट्रियां ये कह सकती हैं ना कि हम कोई ऐसा हार्म नहीं हुआ किसी को, हमने पोल्यूटेंट्स हम छोड़ रहे थे, कोई हार्म तो नहीं हुआ, बट एनवायरनमेंट को लॉन्ग टर्म में हार्म हो रहा है। अब इससे क्या हो रहा है, वो ओजोन फट रही है, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह, पर हार्म तो हो रहा है, एनवायरनमेंट को हो रहा है, अभी तक कोई मरा नहीं है। पर लोग आगे तो मर सकते हैं। अब बोलेंगे इसमें एस्केप कहाँ है, हार्म कहाँ है, तो आप बोलोगे नहीं आएगा स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में, राइट। सिमिलरली एस्केप ही नहीं हुआ अगर कहीं, ठीक है, अब बोलोगे कि एस्केप तो कहीं हुआ नहीं था, अ, हमारे अंदर में थी, आग लगी और उसे पकड़ लिया किसी ने, तो हमने एस्केप छोड़ हुआ, एस्केप तो निकलना होता है, ये तो मतलब नेचुरल बात ही होगा, तो यार ऐसे एक्सेप्शंस ना ले पाए वो। इसीलिए एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में बोला गया कि कोई एक्सेप्शंस नहीं होंगे। अगर आपने डेंजरस एक्टिविटी कर रहे हो, बाय द वर्च्यू ऑफ कि आप एक हजार्डस सब्सटेंस लेके आए हो लैंड पे, आप कर रहे हो एक ऐसी एक्टिविटी जिससे हार्म हो सकता है, इट इज लाइकली टू कॉज हार्म, आप लाइबल होंगे अगर किसी को हार्म होता है तो, ठीक है। अब एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में किसी को कुछ भी हार्म होता है, जैसे एनवायरमेंटल हार्म भी एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में हार्म है, तो इट इज तो व्हाट इज एब्सोल्यूट लाइबिलिटी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी minus exceptions. Okay, easier for you to understand maybe. I hope that it's easier for you to understand now. ये essentials याद रख लेना, ठीक है। Inherently dangerous activity such as chemical manufacturing और gas production। अब देखो इन क्या डेंजरस एक्टिविटी से ये नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये देखा जाता है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में जनरली, ठीक है। बट इसमें नहीं देखा जाता कि नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड है कि नहीं, क्योंकि आप इंडस्ट्रियल एरिया में यार अगर आप ये केमिकल प्रोडक्शन और ये गैस प्रोडक्शन कर रहे हो, तो यार वो तो वहां पे तो उस लैंड के हिसाब से नेचुरल यूज ही होगा ना। रेसिडेंशियल इलाके में वो नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड होगा, पर अगर आप इसे इंडस्ट्रियल लैंड में कर रहे हो तो यार वो तो मतलब नेचुरल यूज ऑफ लैंड में होगा ना। सिमिलरली यार, और ये जो प्रिंसिपल था ना स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का, इट वाज डिराइव्ड थ्रू रायलेंस वर्सेस फ्लेचर्स, ठीक है। अब उसमें क्या हुआ था, रायलेंस वर्सेस फ्लेचर में भी यही बात निकली थी कि यार इतना सारा पानी रिजर्वोयर में अगर आप स्टोर करके रख रहे हो ना, तो ये नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड है, ठीक है। वो माइंस चला रहा था बगल वाला, खैर। और जो रायलेंस थे वो माइंस चलाते थे, फ्लेचर्स उन्होंने रिजर्वायर में पानी रखा हुआ था, शार्ट्स खुली हुई थी, अनप्लग थी, इसलिए पानी भर गया था, माइंस में हार्म हुआ था। वहीं से प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी निकला था। यार अब देखो, नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड, अगर किसी पीजी में या हॉस्टल में बहुत सारा पानी रखा हुआ है, ठीक है, लेट्स से 10,000 लीटर ऑफ वाटर की, पर टंकियां रखी हुई है 3-4, क्या वो नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड में होगा? यार इतना सारा पानी हार्मफुल तो है ना, ठीक है। लेकिन यार वहां पे जरूरत है, क्योंकि वहां पे तो ऑब्वियसली किसी भी हॉस्टल वगैरह में यहाँ पे इतने पानी की जरूरत तो होगी, वर्सेस एक घर में यार जहाँ मतलब हो जा रहा है पानी एक टंकी में, तो वहां तो मतलब एक घर की बात अलग होगी, बट एक पीजी या हॉस्टल में आप लोगे तो यहाँ पे बात अलग होगी पानी की, ठीक है। कि अपने गैस वगैरह रखा हुआ है, क्या वो नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड में आएगा? नहीं, नेचुरल यूज ऑफ लैंड में होगा, खाना तो पकाओगे ना यार, खाना तो खाओगे, ठीक है, कमा रहे हो खाओगे भी, हार्मफुल, ठीक है। तो ये कुछ एसेंशियल्स हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के, यहाँ भी अप्लाई होते हैं विदाउट एनी एक्सेप्शंस। ये मोटी मोटी बात है, वी हैव एक्सप्लेन्ड स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्या होती है, एब्सोल्यूट लायबिलिटी क्या होती है, उसके एक्सेप्शंस क्या होते हैं, थोड़ा सा हमने केस लॉस में डिस्कस कर लिए हैं, राइट, ठीक है। तो पहला एसेंशियल क्या है, इनहेरेंटली डेंजरस एक्टिविटी, ऑल राइट। what is the second essential for this? Harmful substance escapes from the enterprise and causes damage, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकेंड एसेंशियल, एस्केप वाला, और ये हो गया आपका थर्ड एसेंशियल विच इज डैमेज। The entity is automatically liable. Unlike strict liability, absolute liability does not allow any defenses, including the act of God, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस विच इज स्ट्रेंजर टू पार्टी, यार की दोनों की गलती नहीं थी, प्लेंटिव भी फॉल्ट पे नहीं था और डिफेंडेंट उसकी गलती नहीं, कोई तीसरे बंदे ने आके कुछ ऐसा कर दिया कि लाइबिलिटी इसमें दोनों की गलती नहीं, तो कॉम्पन तीसरे बंदे की गलती के लिए ऑब्वियसली कोई एक और कोई बंदा क्यों कॉम्पनसेशन देगा, राइट। या फिर प्लेंटिव्स नेग्लिजेंस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है ना, अगर आप बोलोगे थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस, यहाँ पे एक प्रिंसिपल होता है, प्रीपॉन्डरेंस प्रिंसिपल, आपको क्या करना होता है, 50% से ज्यादा एविडेंस आपको पेश करने होते हैं, मतलब दोनों पार्टीज हैं, एविडेंस पेश करने, जिसने 50% ज्यादा ऊपर काम कर दिया, मतलब मुझे मेरे जो अगर डिफेंडेंट हूँ तो मुझे प्लेंटिव से तो एक आध ज्यादा एविडेंस प्रूव कर दिया अगर मैंने कि यार मैंने ये नहीं किया है, मैं जीत जाऊंगी केस। मैं प्लेंटिव हूँ, मैंने एक आध ज्यादा एविडेंस दे दिया, मैं जीत जाऊंगी केस।
ऑब्वियसली, क्योंकि बर्डन ऑफ प्रूफ इसमें थोड़ा प्लेंटिफ पे ही होता है, ये ठीक है, आप ही को हार्म दिखाना पड़ेगा। बट या प्रीपोंडरेंस ऑफ एविडेंस, ये प्रिंसिपल पे चलता है कि यार बताओ भाई, जिसने 50% ज्यादा एविडेंस दे दिया उसका काम चल गया। चलो, दिस मीन्स दैट कॉर्पोरेशन कैन नॉट एस्केप रिस्पॉन्सिबिलिटी, ensuring those affected receive adequate compensation. The doctrine has played a crucial role in shaping the environmental and industrial regulations in India, compelling corporations to prioritize safety measures, implement preventive strategies to avoid disasters. It serves as a deterrent, discouraging negligence in industries that deal with hazardous substance. अगर आप negligence के नाम पे claim नहीं कर सकते, ठीक है, negligence, necessity, ये सब defenses है। negligence defense नहीं है, it's a tort, sorry। necessity जो है वो एक defense है। नेसेसिटी का डिफेंस क्या है कि आप इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द ग्रेटर हार्म, आप एक छोटी सी गलती कर दोगे, ठीक है, मतलब 100 जाने जा रही थी, एक को मार दिया, 100 को बचा लिया, है ना, ऐसा कुछ सीन होता है उसमें। Absolute liability is a vital legal safeguard that protects individuals from risks posed by industrial activities. Thus, by eliminating defenses, ensuring full accountability, it promotes corporate responsibility, strengthens victim protection. The doctrine continues to influence environmental and industrial law, reinforcing need for strict safety standards, unethical business practice, etc., etc. Through this application, absolute liability has helped to prevent reckless industrial behavior, fostering cultural where safety and responsibility take precedence over profit. As industries continue to expand, technological advancement brings new risk. Importance, absolute liability remains relevant in safeguarding public health and environmental well-being. Now look, इन दिस लॉन्ग एस पैसेज, यहाँ पे तुम देखो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था सिवाय इस पर्टिकुलर पैराग्राफ के। इवन दीज केस लॉज वर नॉट इंपॉर्टेंट, दे वर जस्ट इन्फॉर्मेशन, मियर इन्फॉर्मेशन। तुम्हें नहीं भी पता होगा ना ओलियम गैस लीक लीक एट दिस स्टेज, इट वोंट अफेक्ट योर लाइफ, राइट, टिल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट। व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि तुम्हारे पैसेज में कितनी इन्फॉर्मेशन दी है। तुम्हारे पैसेज में ना स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के डिफ की बात भी नहीं की गई है, तुम्हारे पैसेज में सिर्फ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी की बात की गई है। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के तो एसेंशियल्स बताए भी नहीं है, राइट। उसने तुम्हें 3 एसेंशियल्स बताए, इनहेरेंटली डेंजरस एक्टिविटीज का, हार्मफुल सब्सटेंस का, डैमेज का, और उसने बोला कोई डिफेंस नहीं है। मोटे तौर पर अगर तुमने इस पूरे पैसेज को पढ़ोगे ना तो तुम्हारा ये पूरे पैसेज का प्रिंसिपल यही निकल के आएगा। हैव यू सॉल्व एलिट के क्वेश्चंस जहां पे प्रिंसिपल एक लाइन का होता है, फैक्ट्स थोड़े बड़े होते हैं। फ्लैट में थोड़ा पैसेज भी बड़ा हो जाता है बस, पर आपको प्रिंसिपल एक लाइन का ढूंढना आना चाहिए, विच दिस इज द इंटायर टास्क, ठीक है। पूरा जो आप पेन लेते हैं ना वो यही है कि आप एक लाइन का प्रिंसिपल ढूंढ पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस करते हैं। यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन primarily operated in Bhopal, MP, once mistakenly led to methyl isocyanate (MIC) gas leak, which resulted in 2,600 lives lost and catastrophic side effects in long term. The corporation was brought to court to determine adequate damages. Applying the legal principle elucidated in the above passage, determine what is the liability. In these type of questions, अब देखो तुम्हें दिखेगा पैसेज में कि यहाँ पे इस लाइबल, इस नॉट लाइबल, इस लाइबल, अगले वाले में दिखेगा नॉट लाइबल। पहले से बता दो, इतने बड़े बड़े ऑप्शंस पढ़ोगे ना टाइम नहीं बचेगा, ठीक है। अराउंड 35 क्वेश्चंस आएंगे आपको, आपको क्लैट में 30 मिनट मिलेंगे क्वेश्चंस करने के लिए, लीगल लीगल रीजनिंग के, ठीक है। ये बड़े पैसेज, बड़े क्वेश्चंस, बड़े ऑप्शंस इज समथिंग दैट यू शुड हैबिचुएट योरसेल्फ कि यार ये तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो सब नहीं पढ़ना है, ऑफ कोर्स इसके ट्रिक्स होते हैं। हर पैसेज को आप 5-7 मिनट नहीं दोगे, कुछ पैसेज 3 ही मिनट लेंगे। एंड लीगल रीजनिंग इज वन ऑफ द इजीएस्ट सेक्शन जहां पे लोग कम से कम टाइम लेके ज्यादा एक्यूरेसी लेते हैं। वेरी सिंपल, जस्ट हैव टू फाइंड आउट फ्यू इंपॉर्टेंट लाइन्स ऑफ प्रिंसिपल, अप्लाई इट टू द फैक्चुअल मैट्रिक्स, एंड इट्स क्वाइट इजी। व्हाट वाज द प्रिंसिपल? पहला, इनहेरेंटली डेंजरस एक्टिविटीज विच इज कैजिंग डैमेज, राइट, एंड उसका एस्केप हो रहा है, यही 3 थे, कोई डिफेंस नहीं, यही प्रिंसिपल था। यहाँ पे देखो, अप्लाई करो। यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन है, ठीक है, चलो कोई बात, उसने बोला गैस लीक हुआ है, क्या एस्केप हुआ है? हाँ हुआ है। क्या ये मिथाइल आइसोसाइनेट एक डेंजरस सब्सटेंस है? यस। हार्म क्या हुआ है? 2,600 लाइव्स आर लॉस्ट, ठीक है। इवन लॉन्ग टर्म हार्म भी हुआ है, कुछ साइड इफेक्ट्स भी हुए हैं। क्या एब्सोल्युटली लाइबल होनी चाहिए यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन? 3 एसेंशियल्स मीट हो रहे हैं, फॉर श्योर होनी चाहिए, ठीक है। तो नॉट लाइबल वाले ऑप्शंस आप नहीं रीड करेंगे, डोंट लुक एट दीज ऑप्शंस एंड वेस्ट योर टाइम देयर एंड गेट कंफ्यूज्ड एंड सेकंड गेस योरसेल्फ, ओके। हमेशा इज लाइबल वाले देखोगे। अगर तुमने प्रिंसिपल सही से आइडेंटिफाई किया है तो तुम्हें इस स्टेप में दिक्कत नहीं होगी। चल, यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन, ऑप्शन नंबर ए की तरफ देख रहे हैं। यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन इज लाइबल under absolute liability as it led to disastrous environmental damage
and resulted in loss of life due to hazardous substance escape. Thus, they must pay for compensation and restore the damage. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ऑप्शन में से कुछ ऐसा मुझे वर्ड नहीं दिख रहा है यार कि मैं ऑप्शन को तुरंत ही ऑप्शन एक रेड फ्लैग दिखे मुझे और मैं हटा दूं। ऑप्शन सी पढ़ते हैं, हो सकता है वो बेटर ऑप्शन हो, और आपको हमेशा बेटर ऑप्शन देखना रहता है ना। ऑलवेज रिमेंबर व्हाट आई सेड इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो दैट यू हैव टू फाइंड आउट व्हिच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। अप्रोप्रिएट मतलब अगर सी ए से बेटर हुआ तो मैं सी के पास चले जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे आपको बेस्ट चॉइस देखनी होती है, सबसे बढ़िया क्या है। ठीक है, फल छांटते हो ना, फल लेने जाते हो, तो जिस फल में दाग हो गया है, जिस टमाटर भाई हल्का से ज्यादा पका है या ज्यादा कच्चा है वो नहीं लोगे ना। आप क्या लोगे, परफेक्ट टमाटर ऐसा लेके जाओगे भाई कि अगले 4-5 दिन चल जाए, बाजार नहीं आऊं तो आपको वैसा ही टमाटर ढूंढना है यहाँ पे। ठीक है, द यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन इज लाइबल, ऑप्शन सी, अंडर एब्सोल्यूट लाइबिलिटी बिकॉज ऑफ नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड एंड hazardous activities that led to dangerous substance release subsequently and is the result of same। यार अब तुम देखो कितना परफेक्ट ऑप्शन है, इसने तुम्हें पहला एसेंशियल नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड, हजार्डस एक्टिविटी, डेंजरस सब्सटेंस का रिलीज, एस्केप सब बता दिया। ठीक है, अब तुम देखो इन दोनों ऑप्शन में अंतर क्या है। ए भी सही था, बी भी सही था। वो इन्वायरमेंटल डैमेज की बात कर रहा था यार, पर पैसेज में इन्वायरमेंटल डैमेज की चलो ऐसे क्वेश्चन में बात नहीं है, बट चलो ठीक है ले लो, इन्वायरमेंटल डैमेज भी वही होगा, अज्यूम कर लो यार, रीजनेबल मैन अज्यूम कर लेगा। तुम्हें हमेशा देखना है कौन सा ऑप्शन तुम्हारे पैसेज से ज्यादा मेल खाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट बिकॉज सारे एसेंशियल्स उसमें लिस्टेड हैं, वो तुम्हारे पैसेज से ज्यादा मेल खाता है। वो एक इट साउंड्स नॉट जस्ट एज अ अप्रोप्रिएट रीजनिंग बट ऑल्सो इट साउंड्स प्रॉपर वो लीगल रीजनिंग में जैसे आप दोगे ना बोलोगे तो वैसा भी साउंड करता है। ठीक है, या Question number 27. Velo Citizens Well Forum versus Union of India case was a public interest litigation। PIL, PIL क्या होती है, ये जो उसने बताया फुल फॉर्म है। पीआईएल बेसिकली यार एक फॉर्म ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म है कि यार कोई ऐसी जो लार्जर पब्लिक को इफेक्ट करेगा यार कोई केस, वो कोई एनजीओ वगैरह कोई जाके लगा सकते हो यार। इवन दो आई एम नॉट, मुझे नहीं इफेक्ट कर रहा होगा डायरेक्टली में भी, बट मे बी किसी ऐसे पर्सन को इफेक्ट कर रहा होगा यार कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने जाके सैनिटेशन वर्कर्स जो होते हैं ना मैन होल्स में जाते हैं, मैनुअल स्कैवेंजर्स, ठीक है, तो मैंने उनके लिए अब नो इट इट नॉट माइट अफेक्ट मी। आई मे कम फ्रॉम अ क्वाइट एफ्लुएंट प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड एंड आई एम नॉट समबडी जिनका मैनुअल स्कैवेंजर से कोई भी दूर दूर तक ऐसे इंटरेक्शन होता हो, बट ऑन बिहाफ ऑफ देम आई कैन गो एंड फाइल अ पीआईएल कि यार इनको अभी भी क्यों मैनुअल्स में भेजा जा रहा है, वाई आर वी नॉट हैविंग प्रॉपर इक्विपमेंट जिससे कि ये क्लीनिंग हो सके, सीवेज क्लीनिंग हो सके, इसमें कितने सारे इश्यूज हैं यार। तो ऐसे जाके मैं पीआईएल फाइल कर सकती हूँ, राइट। Even though what is my locus, there's a thing called locus standi, which is my what authority, why are you filing this case, तुम्हारा आखिर क्या इंटरेस्ट है इसमें, राइट। तो पीआईएल में हम देखते हैं लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट है, तो कोई भी केस सामने लाया हो हम उसका इंटरेस्ट नहीं देखते, हम देखते हैं लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट है कि नहीं, वो उसे पीआईएल कहते हैं। ठीक है, अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय एनजीओ वेलो सिटीजन वेलफेयर फोरम, the petition highlighted that severe environmental pollution caused by the tanneries and industries in Tamil Nadu, particularly the discharge of untreated effluents in Palar River, the region's primary water source, ठीक है, determine what possibly could have been the reasoning given by the court। अब वो यहाँ तुमसे नहीं पूछ रहा किसने गलत किया सही किया, वो तुमसे कोर्ट की रीजनिंग पूछ रहा है सीधे। ठीक है, इन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस डोंट, दे आर नॉट येस और नो टाइप ऑफ क्वेश्चंस, राइट। दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस दे टेस्ट वेदर तुमने मतलब तुम प्रिंसिपल को कितने अच्छे से अप्लाई कर पा रहे हो। लाइक दीज दे मेक यू थिंक लाइक अ जज एंड हियरिंग यू हैव टू थिंक लाइक अ जज। ओके, दैट दिस इज योर जजमेंट एंड रीजनिंग क्वेश्चन जो तुम इन ऑप्शंस में ये डेमोन्स्ट्रेट करते हो, तो यही वही क्वेश्चन है। ठीक है, ए, द टैनरीज वर डिस्चार्जिंग hazardous chemical waste in rivers which was impacting the water resources and the lives of Tamil Nadu populace, thus must be held liable for environmental and life damages that are caused by under absolute liability। Good option, right। सारे एसेंशियल्स दिखा रहा है, हार्म दिखा रहा है, व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दिस ऑप्शन, बट ऑलवेज आई टोल्ड यू टमाटर छाट रहे हो, अच्छे से अच्छे घर ले जाने हैं, तभी अच्छा सूप या केचप बनेगा जो भी तुम बना के खाते हो। There wasn't any escape per se for dangerous substance that is impacting the lives of populace directly। Therefore, tanneries cannot be held liable under absolute liability as the essentials do not suffice। अब वो बोल रहा है कि कोई एस्केप नहीं हुआ था डायरेक्टली जिसने कोई हार्म किया उन लोगों को। ठीक है, तुम लेकिन इधर देखोगे ना, उसने बोला प्राइमरी वाटर सोर्स था एंड उससे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है, चलो ठीक है इनडायरेक्ट हार्म हो रहा है लोगों को इससे। रीजन का प्राइमरी वाटर सोर्स है, मैं वो पानी पी रहा हूँ तो
तुम एक बार ये रीजनिंग बोल भी तो कि डायरेक्ट हार्म नहीं है, इनडायरेक्ट हार्म है। यार देखो, हार्म इज हार्म, ठीक है। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी यही कॉन्सेप्ट को तो डील डील करती है। इनडायरेक्ट हार्म, हार्म हार्म इज हार्म, ओके। तो इसलिए वो लाइबिलिटी निकली थी। चल, दिस इज नॉट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ए है तो ऑब्वियसली बी नहीं होगा करेक्ट आंसर, क्योंकि ए बेटर आंसर है एवरी एस्पेक्ट। तो हम बी को एलिमिनेट तो कर सकते हैं इसके कंपैरिजन, क्योंकि रिलेटिवली ए बेटर है। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? एंड दिस ऑप्शन इज, इसकी रीजनिंग भी गलत है, क्योंकि इसमें कोई एस्केप नहीं है, जिससे कि टैनरीज लाइबल ही नहीं है। टैनरीज लाइबल है पहली बात, क्योंकि एस्केप हो रहा है, डेंजरस सब चीज का एस्केप हो रहा है यहाँ पे। एंड इससे हार्म हो रहा है, वो हार्म डायरेक्ट हो रहा है, इनडायरेक्ट हो रहा है, नॉट माई मैटर ऑफ कंसर्न। हार्म इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। Tanneries were operating in a secluded zone outside the residential areas, and thus the situation seemed like a creating mountain of a molehill, as there is no damage in anybody. अच्छा ठीक है, ठीक है, and there is no they are not liable. Now again, secluded zone में है या नहीं, this is not something जो essential में बात की गई है। essential में सिर्फ एक चीज बोली गई है, dangerous substance, inherently dangerous substance। अब वो तुम इंडस्ट्रियल जोन में लाए हो, रेसिडेंशियल जोन में लाए हो, डजंट मैटर, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहीं से एलिमिनेट हो जाता है। Tanneries will be neither liable under absolute liability nor polluters pay, as the precedent do not follow and the ingredients more so are missing to be applied logically in the case. What a stupid option. Doesn't even tell you the proper reasoning, man. I mean, what ingredients? Like, look, ये ऐसा ऑप्शन पता है कि सारे इंग्रेडिएंट्स मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, इज ओनली बेटर जब सारे इनमें से इससे कोई बेटर ऑप्शन नहीं मिले। जहां पे भी सारे इंग्रेडिएंट्स लिस्टेड हो, प्रॉपर रीजनिंग हो, दैट शुड बी द बेस्ट आंसर, आई मीन द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। दिस इज, एंड ये दिस इज पर से गलत, क्योंकि ये भी लाइबिलिटी नहीं ठहरा रहा है। नाउ लुक, I read all of these options. You need not need to read all of these options while you're giving your mock or you're writing your CLAT. You just have to ऑप्शन को ना एक वर्ड की वजह से एलिमिनेट किया करो। पूरा ऑप्शन सिर्फ एक वर्ड की वजह से, एक फ्रेज की वजह से गलत होता है। तुमने जिस दिन वो वर्ड ढूंढना सीख लिया, उसकी पहले पीछे की रीजनिंग बता दी, उसके बाद से तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होगा, तुम्हारा निकल जाएगा क्लैट। तो देखो, इसमें बोला टैनरीज कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल। यार, टाइनरीज लाइबल है, मैंने तुम्हें बोला ना, तुम जब पढ़ोगे तभी तुम्हें समझ में आ जाएगा, तुम्हें प्रिंसिपल अप्लाई करोगे, येस है कि नो है, लाइबल और नॉट लाइबल, राइट। तो कैन नॉट बी लाइबल, ये भी बोल रहा है, वो ऑपरेटिंग सेक्लूडेड जोन, ठीक है ठीक है ठीक है, वट एवर, स्किम रीड करो, नॉट लाइबल, हटा दो फिर से, ठीक है। तुम ये देखोगे टैनरीज नाइदर लाइबल, फिर से हटा दो इसको यहाँ से। ऑल ऑफ दीज थ्री ऑप्शंस नाइदर लाइबल। तुम्हें बस नो या यस वर्ड फाइंड आउट करना है, तुरंत हटाओ उस ऑप्शन को। उस ऑप्शन पे एक टाइम वेस्ट और करोगे ना, मतलब अपने मॉक का प्रेशियस टाइम वेस्ट कर रहे हो यार। तुम एक ऐसे क्वेश्चन पे डेडिकेट कर सकते थे जिसपे तुम हो सकता है एप्लीकेशन ऑफ माइंड लगे, जिसपे ऑप्शंस को इवैल्यूएट करना पड़े। तो अगर तुम ऐसे ऑप्शंस में जहां तुम्हें पता है कि यार ये तो फालतू के ऑप्शन पढ़ के कुछ नहीं मिलना है, वो मत, उस ऑप्शन को तुरंत ढूंढो उसका वर्ड। एंड जहां पे नॉट नॉट लाइबल, नॉट लाइबल में तुम्हें पता है लाइबल है, तो नॉट लाइबल ऑप्शंस को रीड करने में बिल्कुल टाइम वेस्ट मत किया करो। थंब रूल है, एवरीबडी हुसोएवर जिसका भी रीडिंग लीगल रीजनिंग सेक्शन 28 मिनट में 25 मिनट में खत्म हो रहा है ना, हैज एज डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन है नेचुरली इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ओके। Question number 28. Jayalakshmi Salt Workers operated in a salt manufacturing unit in Gujarat. In 1954, the state of Gujarat constructed a Bandh dam to reclaim salt affected lands. However, the design and the maintenance of the Bandh led to flooding in 1956, causing significant damage to the petitioner's factory. Determine whether the government of Gujarat will be held responsible under absolute liability or not. यार पता है, इस क्वेश्चन में अगर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का क्वेश्चन होता ना, तो तुम बोल देते यार गवर्नमेंट ऑफ गुजरात को ना ऑब्वियसली स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के एक्सेप्शन में ना डिफेंस मिल जाता। बट ये एब्सोल्यूट लाइबिलिटी है, यहाँ पे कोई डिफेंस नहीं लगता है। तो डिफेंस अगर ये एक्स्ट्रा, पहली बात तो ये सब ना एक्स्ट्रा लीगल नॉलेज है। अगर स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के एक्सेप्शन की बात तुम्हारे पैसेज में नहीं की गई है, यू डू नॉट हैव टू कंसिडर, दैट थिंग डजंट एग्जिस्ट फॉर यू, दैट इज इट, ओके। रिमेंबर, अगर तुम्हारे पैसेज में स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के एसेंशियल्स डिस्कस नहीं है, तो मतलब तुम्हारे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती, इवन तो तुम्हें उसकी नॉलेज है, वो तुम्हें पता है क्या नहीं है। तुम्हारे पैसेज में जिसकी बात है ना, तुम्हें सिर्फ उसी बात को ध्यान रखना है कि ये मेरे पैसेज में जो दिया है तुम्हारे लिए, दैट इज द गॉस्पेल ट्रूथ। नेवर एक्सीड, नेवर ब्रीच वट एवर इज गिवन। तुम्हारे पैसेज के बियॉन्ड कभी मत जाना, गलत हो जाएगा आंसर, एंड बुरा भी लगेगा बहुत कि यार इतना पढ़ के निकले आंसर गलत हो गया, ठीक है। चलो, लाइबल और नॉट, चलो बताओ। यार फ्लडिंग हो गई, इससे मेरा नुकसान हो गया, ठीक है। अब तुम ऑप्शन से इवैल्यूएट करो, तुम्हें क्या लगता है यार कि इसमें क्या डेंजरस सब्सटेंस रखा था, क्या एस्केप हुआ है, क्या कोई डेंजरस सब्सटेंस लेके आया है पिटिशनर, इनहेरेंटली डेंजरस सब्सटेंस क्या, जिससे कोई एस्केप हुआ है क्या? तो एस्केप ठीक है, इनहेरेंटली डेंजरस सब्सटेंस क्या है, बहुत सारी बातें जो है वो डेंजरस सब्सटेंस है।
एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या ये बंद कंस्ट्रक्शन और बंद डैम, इससे बारिश होना और वो इनहेरेंटली डेंजरस सब्सटेंस होना, लिंक, कॉजल लिंक बैठ रही है क्या? ऑप्शंस में इवैल्यूएट करते हैं हमें ऐसे क्वेश्चन में, जब तुम्हें लगे कि बहुत कंफ्यूजन है, ऑलवेज रीड ऑप्शंस, मे बी तुम वहां से एलिमिनेट कर पाओ, क्योंकि तुम्हें पैसेज क्लियर है ना, तो तुम ऑप्शंस छाट लोगे। ठीक है। यस, द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, ऑप्शन नंबर ए रीड कर रही हूँ, must be liable for flooding is gallons of water which is dangerous substance which resulted in loss of petitioner due to the escape which is clearly government's insouciance and failure of infrastructure, thus they must be liable for compensation under absolute liability. Option number B पढ़ो। No, the principle of absolute liability will not apply because flooding was not caused by hazardous industrial activity but rather governmental infrastructure failure, and thus government of Gujarat will not be held liable। ठीक है, इट वॉज नॉट हजार्डस इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, बट ये एसेंशियल नहीं है कि हजार्डस इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होनी चाहिए। इनहेरेंटली डेंजरस सब्सटेंस इज द एसेंशियल, राइट? सो इवन तो तुम्हें ये टर्म्स क्लियर होंगे ना, तो यू विल अंडरस्टैंड कि यार ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इज नॉट वन ऑफ माई essentials, right? Option B, eliminated. Yes, the state of Gujarat was negligent in constructing. Yeah, you were negligent in constructing in the dam and maintenance of the bund, which led to flooding damage, and salt factory authorities failed to take preventive measures, which is liable for compensation. यार वो लाइबल ठहरा रहा है यहाँ पे, विच इज अ ग्रेट थिंग, बट देन थिंक अबाउट इट कि यार वो किस में लाइबल ठहरा रहा है तुम्हें? नेग्लिजेंस में ना। इट इज नॉट, वो लाइबल किस में होना चाहिए? पैसेज में किसकी बात की है? नेग्लिजेंस की बात की है कि एब्सोल्यूट लाइबिलिटी की बात की है? आस्क योरसेल्फ। तो क्या ऑप्शन सी हो सकता है? ऑब्वियसली एब्सोल्युटली नॉट। ठीक है, नो, state of Gujarat will not be liable because the flooding was caused by natural factors like constitute or act of God, while the bandh was built for public welfare. The damage was unintended here. Thus, the concept of absolute liability does not apply. What a tremendously incorrect answer this is, and this is the kind of answer I was looking for कि यार मैं तुम्हें प्रिंसिपल बता सकूं। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में एक इम्पॉर्टेंट वो दिया है, प्रिंसिपल एक और दिया है, अपार्ट फ्रॉम द थ्री की प्रिंसिपल की इनहेरेंटली डेंजरस एक्ट है, उससे हार्म होना चाहिए और उसका एस्केप होना चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट बात लिखी हुई थी, पता है वो बात क्या थी? दैट इट हैज टू बी नो एक्सेप्शंस और डिफेंस इन दिस एब्सोल्यूट लाइबिलिटी के केस में। एंड यहां पे वो बात करता है डैमेज वॉज अनइंटेंडेड, इंटेंशन इज इमटेरियल। ठीक है, अगेन इट वॉज अ नेचुरल फैक्टर, तो इट वॉज एक्ट ऑफ गॉड, अगेन द एक्ट ऑफ गॉड का डिफेंस नहीं लग सकता यहाँ पे, क्योंकि एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में तो कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। तो ये सारे ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द रीजनिंग, बिकॉज ऑफ द वर्डिंग, एंड आई हैव मार्क स्पेसिफिक वर्ड्स के इनकरेक्ट। ठीक है, लाइक यहाँ पे मैंने तुम्हें बताया इनकरेक्ट वर्ड क्या है, यहाँ पे मैंने तुम्हें बताया इनकरेक्ट वर्ड क्या है, यहाँ पे भी मैंने तुम्हें बताया कि इनकरेक्ट वर्ड क्या क्या है इस ऑप्शन में। ठीक है, इस ऑप्शन में दो तीन चीजें गलत थी ऑप्शन नंबर डी में। नेचुरली ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ग्रेट। In England, where Thomas Rylands, a mill owner, commissioned a construction of water reservoir on his land, the contractor failed to notice old, disused mine shafts beneath the reservoir site. When the reservoir was filled, water burst out and the shafts flooded into John Fletcher's coal mine and the neighboring property, causing severe damages. Determine whether absolute liability applies or not. अंडरस्टैंड, तुम्हें लगेगा ये केस पढ़ के कि यार ये तो रायलैंड्स वर्सेस फ्लेचर है, वही केस है, उसी का फैक्चुअल मैटर्स है। बट अगेन, क्या तुम्हारे पैसेज में स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी की बात की गई है कि एब्सोल्यूट लाइबिलिटी की बात की गई है? अप्लाई द प्रिंसिपल्स ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी हियर। वाज देयर अ नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड? यस, इतना सारा पानी, गैलन्स ऑफ वाटर रिजर्वायर में, नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड है। क्या इसका एस्केप हुआ है? इंडीड इसका एस्केप हुआ है। क्या इससे हार्म हुआ है? सीवियर डैमेज, पैसेज में बोल रहा है तुम्हारा फैक्चुअल मैट्रिक्स कि हाँ डैमेज हुआ है। क्या तीनों एसेंशियल्स मिल रहे हैं एब्सोल्यूट लाइबिलिटी के? इंडीड मिल रहे हैं। पैसेज में किसकी बात हुई है? एब्सोल्यूट लाइबिलिटी की बात हुई है। क्या कोई एक्सेप्शन लगेगा? इमटेरियल। ठीक है, तो इन दिस, इवन दो ये क्वेश्चन स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का, मतलब ये तो फ्लैगशिप केस है, रायलैंड्स वर्सेस फ्लेचर ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, येट क्योंकि तुम्हारे पैसेज में एब्सोल्यूट लाइबिलिटी की बात की गई है, इसमें सारे प्रिंसिपल्स ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी मिल रहे हैं, इसीलिए यस इट इज लाइबल। I mean, only in this particular scenario, this question was only kept to tell you the importance of how important your passage is. Even though you might have, तुमने पूरा केस लॉ पढ़ लिया होगा, but yet अंडरस्टैंड कि तुम्हारे पैसेज में जो दिया है ना, वही डिटरमाइन करेगा कि क्या तुम्हारे वो सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी।
तो यस, यहाँ पर मोस्ट डेफिनेटली ऑप्शन बी और सी को तुम देखोगे भी नहीं, तुम ऑप्शन ए और डी में ही देखोगे। तो ऑप्शन ए और डी को पढ़ के देखोगे। यस, थॉमस आइलैंड्स विल बी लायबल बिकॉज ऑफ द लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर विच इज hazardous substance led to escape its cause damage. He must pay for the damages under absolute liability. Yes, great option, telling all of the important essentials. ऑप्शन नंबर डी भी रीड करना है तुम्हें, बिकॉज आई टोल्ड यू यू हैव टू लुक फॉर द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। इवन दो ए तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, तुम्हें डी हमेशा रीड करना है। ओके, हमेशा कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में एक ऑप्शन टिक मत कर देना, गलत हो जाएगा। ठीक है, अनटिल अनलेस तुम्हारा पेपर छूट रहा है, तुम्हें कुछ ना कुछ मार्क करने कुछ अटेम्प्ट करना समटाइम्स इज इंपॉर्टेंट, डिपेंडिंग अपॉन द पेपर। उसकी भी स्ट्रैटेजी है, उसकी स्ट्रैटेजी वीडियो में किसी दिन बात करेंगे। बट अंडरस्टैंड, अगर किसी तुम्हारा जब तक छूट नहीं रहा हो ना यार, लास्ट मिनट नहीं बचे हो, ओएमआर में मतलब मार्क करो, जल्दबाजी ना हो, तब तक कभी भी ये गलत काम मत करना कि तुमने सिर्फ एक पैसेज एक क्वेश्चन एक ऑप्शन पढ़ा और ज- हवा में निपटा दिया दूसरा ऑप्शन। ठीक है। Yes, Thomas Rylands will be liable as he was operating a reservoir in a residential area, thus resulted in damage due to uncontrolled release of dangerous quality waters. Always see in this type of now look, इवन तो तुम्हें पता है यहाँ पे क्या है, क्योंकि तुम इतना एक्सपीरियंस हो चुका है तुम्हें पैसेज सॉल्व करते करते, बट आई वांट टू टेल यू समथिंग गुड आउट ऑफ दिस ऑप्शन डी। आई विल बी टेलिंग यू टेक्निक। लुक, यहाँ पे ऑलवेज सी वो तुम्हें लाइबल किसके लिए ठहरा रहा है। ऊपर एक ऑप्शन था, मैंने तुम्हें बताया था कि वो नेग्लिजेंस के लिए लाइबल ठहरा रहा था इन गुजरात, सो वो सॉल्ट वाला फैक्ट्री वाले केस में। यहाँ पे वो उसको लाइबल ऑपरेटिंग अ रिजर्वायर इन अ रेसिडेंशियल एरिया के लिए ठहरा रहा है। व्हाट इज एन ऑफेंस? क्या मैंने रेसिडेंशियल एरिया में बहुत सारा पानी रख लिया, ये मेरा सिर्फ यही मेरा एक वो जिसके लिए मैं लाइबल होऊंगा? व्हाट इज इलीगल? ठीक है, तुम लाइबल उसके लिए हो गए। तो थिंक अबाउट इट, क्या ऑपरेशन ऑफ रिजर्वायर प्रॉब्लमैटिक बात है कि यार उससे पानी बह के एस्केप, जो उस एस्केप से जो हार्म हुआ वो इंपॉर्टेंट, वो उससे लाइबल है, वो चीज एक इलीगल चीज है जिसके लिए कॉम्पनसेशन मिलनी चाहिए, लाइबल होगा इसके लिए। तो थिंक अबाउट इट कि वो लाइबल किसके लिए ठहरा रहा है। ठीक है, दी ऑप्शन माइट समटाइम्स हेल्प यू इन एलिमिनेटिंग, जहां पे इतने डायरेक्ट वो नहीं हो। तो ऑब्वियसली ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। हम बी और सी को भी पढ़ेंगे, अंडरस्टैंडिंग का टेक्निक कि इसमें क्या गलत है। No, Thomas Ryland will not be liable because water is not an industrial hazardous substance and thus will not have to pay for damages. यार इंडस्ट्रियल hazardous substance, इंडस्ट्रियल वर्ड से प्रॉब्लम है। अब जब वो बात करता है ना hazardous substance की, तो ऑलवेज ये चीज ध्यान रखना, ये इंडस्ट्रियल नहीं, वो hazardous substance की बात करता है। इट कैन बी एनी hazardous substance। ठीक है। Okay. No, Thomas Rylands will not be held liable for he is an independent contractor. So negligence which has led to damage. यार independent contractor की तो बात ही नहीं की गई है। तो दिस इज अगेन आउट ऑफ द स्कोप ऑफ योर पैसेज। ठीक है, अगर तुम इस एक ऑप्शन को बताना होगा ना कि ये क्यों वो है मतलब एलिमिनेट हुआ है, बिकॉज दिस इज आउट ऑफ द स्कोप ऑफ योर पैसेज। ठीक है। अगर तुम बोलोगे ना कि क्यों तुम्हारा ऑप्शन बी गलत है, तो तुम बोलोगे इट इज पार्शियली इनकरेक्ट आंसर, क्योंकि हजार्डस सब्सटेंस चलो ठीक है, पर इंडस्ट्रियल हजार्डस सब्सटेंस अगेन प्रॉब्लमेटिक। ठीक है। तो ऐसे ऑप्शन को कैटेगराइज करना सीखो कि अच्छा ये गलत है क्योंकि ये पार्शियली इनकरेक्ट है, ये गलत है क्योंकि ये आउट ऑफ स्कोप ऑफ पैसेज, ये गलत है क्योंकि ये ऑर्थर को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। ऑलवेज ट्राई टू कैटेगराइज, इससे तुम्हारी स्मार्टनेस दिखेगी, तुम्हें ऑप्शंस को एलिमिनेट करने के अलग अलग रीजनिंग वो पता चलेगा, आर्टिकुलेट करने का तरीका पता चलेगा। यू विल बी मोर श्योर इन योर माइंड एज टू व्हाई दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। ठीक है। तो बार बार क्वेश्चन पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करोगे, एग्जाम में आगे बढ़ पाओगे इन एन ईजी पेपर, जहां पे बच्चे डाउट करने लगते इतना ईजी कैसे दे दिया है कंसोर्शियम ने। तो है यार वो ईजी, जब सर्टेन रहोगे ना माइंड में तो फंसोगे नहीं। जो बाकी बच्चे होंगे, कुछ बच्चे होंगे यार वो अपने आप को सेल्फ डाउट करेंगे, उन्हें ट्रस्ट ही नहीं होगा, तो बार बार क्वेश्चन को रीड करेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे अपना। ठीक है, तो बी वेरी वेरी श्योर, लॉयर बनने वाले हो सर्टेन रहना हमेशा। सर ठीक है। स्टरलाइट इंडस्ट्रीज वर्सेस तमिलनाडु पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड केस रिवॉल्व अराउंड एनवायरमेंटल पोल्यूशन कॉज्ड बाय कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट ऑपरेटेड बाय स्टरलाइट इंडस्ट्रीज इन ओके इन तमिलनाडु। तो तमिलनाडु पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड TNPCB ordered the closure of plant due to concerns over air pollution, particularly the release of sulfur dioxide SO2, which led to health issues among local residents. Determine the outcome of the case with appropriate legal reasoning. ठीक है, क्या लगता है लाइबल और नॉट लाइबल? ये वो पूछ रहा है पोल्यूशन को। ठीक है। तो Sterlite Industries will be held liable for sure under absolute liability because of the escape of dangerous substance resulting in damage to the residents. ठीक है, great option. The Sterlite Industries will be held liable because they were operating in residential area impacted by localities. Again, a problematic option. Sterlite Industries will not be held liable because there was no such escape of harmful substance. Hence, one of the important ingredients of absolute liability is missing.
All right. Now, this option will make you second guess and go back again to waste your time and read कि वो कहाँ बात कर रहा है, ये पैसेज में कहाँ escape हुआ है भी कि नहीं हुआ है. So you'll go back again. Read this option. I'll explain. इसको 2 मिनट रुको. Sterlite Industries will be not held liable because as the compliance of environmental regulations is unquestionable. Moreover, their economic and employment benefit is more than any substantial damage which is being caused. Wow. Classic case of unaffected. तो हमने मूवीज देखी, बॉलीवुड मूवीज. उसमें वो जो बड़ा वकील रिप्रेजेंट करता है ना बड़ी कॉर्पोरेशंस को, वो यही कहता है कि सर इतना बड़ा इकोनॉमी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं हम, एक जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हम, ये छोटे मोटे डैमेजेस तो होते रहते हैं, क्या फर्क पड़ता है, सारे कंप्लायंसेस है, सारे कागज पत्तल सब मिल रहे हैं, सब घूस घूस खिला दिए, क्या दिक्कत है. ये वही वाला ऑप्शन है. तो ऑब्वियसली दिस ऑप्शन इज नॉट देयर. ये तुम्हारे पैसेज के स्कोप के भी बाहर है. तो ये इकोनॉमिक और एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो, इसका मतलब ये नहीं तुम कुछ भी कर सकते हो, है ना. मुझे खाना खिला रहे हो, इसका मतलब ये तुम कुछ भी करोगे, है ना. ये यही बात है इसमें भी. ठीक है. अब तो मैंने इस ऑप्शन सी पे तुम्हें रोका था, ऑप्शन ए पे टिक करने से पहले रीड. वो ऑप्शन ए की मैं क्या सजेस्ट कर रहा है कि एक इंग्रेडिएंट मिसिंग है, क्योंकि वो बोल रहा है कि देयर इज नो एस्केप. वो कह रहा है स्टेरलाइट, और ये तमिलनाडु बोर्ड कह रहा है वो कह रहा है, तमिलनाडु पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कह रहा है कि यहाँ पे इस प्लांट का बंद हो जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे एयर पोल्यूशन के कंसर्न्स हैं. ठीक है, क्योंकि देयर इज पर्टिकुलर रिलीज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड जिससे हेल्थ इशू हो रहा है अमंग लोकल रेसिडेंट्स. ठीक है. अब वो कह रहा है, मैंने तुम्हें याद को स्टार्टिंग में भी बताया था कि यार कि एस्केप हो रहा है, अब से डैमेज होना चाहिए. अब वो डैमेज इन मतलब वो डैमेज डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो डजेंट रियली मैटर, एस्केप तो है ना. इससे डैमेज तो हो रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड निकल रहा है, अभी कोई डैमेज नहीं हो रहा पर आगे होगा. तो ऑब्वियसली भाई ये रीजनिंग देना कि कोई एस्केप नहीं है, आप इसे बोलोगे कोई एस्केप नहीं, गलत बात है. ठीक है. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. ये आज के तो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर पैसेज. आई वुड सजेस्ट कि आप एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, इन सब के बारे में, डिफेंसेस के बारे में जाके गूगल पे और पढ़ें and learn the application. With that, we end this video. Thank you so much. If you have any doubt, please comment sections में आप अपने doubts बता सकते हैं. I'll be replying to all of your doubts personally. तुम लोग टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हो. कोई दिक्कत नहीं है. With that, we end this video. Thank you so much.